Hi, this is Polyband Teachers and I am Sagorika Banerjee. Once again, I am back with another exciting video for the students of class 9th. So today I am going to tell you about the theme of the chapter Kathmandu, which we have already done in the previous video. I have explained you about the value points and about the author. In this video, we are going to do about the theme of the chapter and the competency based questions which can be made on this चैप्टर. सो इस वीडियो में हम लोग थीम पढ़ेंगे और हम लोग इस चैप्टर से किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे. इसके अलावा उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स डालने होते हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर. तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा. इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. नाउ कमिंग टू द थीम ऑफ द चैप्टर. The theme of this chapter, Kathmandu, which is written by Vikram Seth, this chapter has been taken, it is an extract from the book Heaven Lake. मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑथर के रिनाउंड बुक्स के बारे में बताया था, तो उसमें एक नाम था हेवन लेक. हेवन लेक में से ये चैप्टर लिया गया है जो कि उन्होंने काठमांडू पे लिखा था. So it is about a city of Kathmandu and the author's personal experiences and observations during his visit there. तो इस चैप्टर में ऑथर ने अपनी एक्सपीरियंसेस बताई है, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है जो उन्होंने वहाँ पर ट्रैवल करते हुए पाई थी. The passage describes the sights, sounds and atmosphere of the city as well as the author's reflections ऑन द पीपल एंड कल्चर. बहुत ही अच्छे ढंग से एक तरीके से जब रीडर स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं तो विजुअलाइज करने लगते हैं कि वो खुद ही वहाँ पर उस काठमांडू में पशुपतिनाथ टेम्पल के सामने खड़े हैं या फिर बौद्धनाथ स्तूपा के सामने खड़े हैं. द ऑथर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द आइडिया ऑफ ट्रैवल एंड द वेज इन विच इट कैन चेंज वंस पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड. तो एक तो ऑथर इस बात को भी काफ़ी हद तक अहमियत देते हैं कि व्हेन वी ट्रैवल it helps us to explore, it helps us to meet new people, to know about the culture of different places and people. So culture, अलग अलग तरीके के कल्चर, अलग अलग तरीके के लोग, उनकी भाषा, उनके रहने की का तरीका, उन अलग टाइप के लोगों से मिलना आपका तभी होता है जब आप ट्रैवल करते हो. So this is all about the theme of the chapter Kathmandu. Now coming to the this competency based questions. तो मैंने एक RTC लिया है जिसमें I have taken some lines from this. The lines are: Kathmandu is vivid, mercenary, religious with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets. You can see on the screen with fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls and chocolate or copper utensils and Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells ring, stray cows low, questioning at motorcycles, vendors shout out their wares. तो ये लाइन मैंने उस चैप्टर में से ली है. And the questions I have made on this, it's an MCQ question. Kathmandu has a religious look because of, now the options are given. First is shop selling flowers and leaves. Second is narrow and busy streets. Third is small shrines and flower adorned deities. Fourth is shop selling idols of gods and goddesses. The correct answer is the C option, that is small shrines and flower adorned deities. Coming to the next question, what were the shopkeepers selling? Fruits and flutes, film rolls and chocolates, utensils and antiques, and the last option is all of these. So the last option is the correct answer. Third question is, what kind of utensils and antiques are sold in Kathmandu? First option is clay utensils and Indian antiques. Second is steel utensils and Indian antiques. Third is brass utensils and Nepalese antiques. And the fourth one is copper utensils and the Nepalese antiques. So the fourth option is the correct answer. Next is fourth question from this extract is,
The meaning of the word mercenary is, meanings are given: kind, merciful, clever and greedy. So the option 4th is the right answer. Now coming to the second type, that is short type question. First question comes out to be like this. इन questions में आपको 40 to 50 words के आंसर लिखने होते हैं और ये 3 marks का होता है. The questions are, what does the author imply by febrile confusion in the Pashupatinath temple? या फिर what made the atmosphere in and around the Pashupatinath temple full of febrile confusion? ये phrase उन्होंने use किया है चैप्टर में. So the pointers I have given, आप इसको आंसर के फॉर्म में लिखेंगे. The pointers are, the atmosphere around Pashupatinath temple was chaotic. chaotic वर्ड आप यूज करोगे. वहाँ पर टेम्पल के आसपास का एरिया, एटमॉस्फेयर chaotic था ड्यू टू द बस्लिंग क्राउड एंड डिसऑर्डरली एक्टिविटीज. सेकेंड पॉइंट आप ये डाल सकते हो, पीपल जॉसल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ डेटी. सब एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ डेटी, भगवान का एक दर्शन करने के लिए. लीडिंग टू क्लैशेस एंड कन्फ्यूजन एज दे ट्राई टू एंटर द टेम्पल. और इससे एक दूसरे में लड़ाइयाँ भी हो रही थी. नेक्स्ट इज sadhus or holy men sat around engaging in loud conversations adding to the noise and commotion. आसपास जगहों में साधुस बैठे हुए थे, जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिससे भी वहाँ पर नॉइज बढ़ रही थी. Another one is vendors, beggars and animals contributed to the already chaotic scenes. तो ऑलरेडी chaotic scene में जहाँ ऑलरेडी इतनी नॉइज है, आसपास के दुकानों से जो शॉपकीपर्स है वो भी ऊंची आवाज़ में अपने माल को, अपने सामानों को बेच रहे थे. बेगर्स भी थे जो ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, और एनिमल्स का भी वहाँ पर, लाइक मंकीज का उन्होंने दिया एग्जाम्पल दिया हुआ है. द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनगोइंग रिलीजियस रिचुअल्स एंड द हसल ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज हाइटेंड द टेंशन एंड एक्साइटमेंट. और इसके अलावा जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, जो पूजा हो रही है, उससे भी नॉइज क्रिएट हो रही है. डिवोटीज ईगरनेस एंड फर्वर इंटेंसिफाइड द कन्फ्यूजन मेकिंग द एनवायरनमेंट रेस्टलेस. और भक्तगणों का वहाँ पर, क्योंकि उनको दर्शन नहीं हो रहा है, ठीक से प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी ऊंची आवाज़ों में बात करना भी एक तरीके का कन्फ्यूजन और chaos क्रिएट कर रहा है. The overall atmosphere reflected a blend of spiritual devotion and human disorder, creating a sense of febrile confusion. Overall atmosphere कैसा था? It was filled with devotion. तो spiritual devotion का blend along with the human noise, human disorder, chaos, और इससे एक तरीके का febrile confusion create हो रहा था. So all these points you can put in the form of an answer. Paragraph में आंसर लिखना है, पॉइंटर्स में नहीं लिखना. पॉइंटर्स मैंने आपको बोले हैं इसलिए कि आप इनको अपने आंसर में फॉर्मुलेट करके लिख सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज आर ऑब्जर्व बाय द ऑथर इन ऑन द बैंक्स ऑफ बागमती रिवर. तो बागमती रिवर के पास वहाँ का भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से दिया है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी. सो फर्स्ट वन इज द क्रिमेशन रिचुअल्स. एक तो क्रिमेशन रिचुअल्स हो रही थी. दूसरा बेदिंग एंड ऑफरिंग रिचुअल्स, लोग वहाँ पर नहा रहे थे, लोग पूजा भी कर रहे थे. तीसरा डिवोशनल ऑफरिंग्स, लोग उस नदी को भी पूजा कर रहे थे, तो पीपल ऑफर फ्लावर्स, लीव्स एंड अदर रिलीजियस आइटम्स टू द होली रिवर एंड एज अ पार्ट ऑफ देयर वर्शिप. चौथा था परफॉर्मर्स एंड प्रीस्ट. वहाँ पर प्रीस्ट, बहुत सारे पंडित और रिलीजियस पीपल, जो भक्तगण हैं, वो आसपास थे और वो लोग अपनी ट्रेडिशनल पूजा कर रहे थे. And another last point is general hustle and bustle. The banks of river are always crowded with people. तो यहाँ पर भी वही था, नदी के पास का एरिया जो है ना पूरा लोगों से भरा हुआ था. They were involved in various types of religious activities, cultural activities, and this contributed a lot of noise and makes the atmosphere quite lively भी था. Now coming to the third question, describing the street around the Bodhnath Stupa, why does the narrator say this is a haven of quietness in the busy streets around? ऑथर ये क्यों कह रहा है कि बौद्धनाथ स्तूपा के आसपास का एरिया एक हेवन ऑफ क्वाइटनेस थी? तो इसके लिए बौद्धनाथ स्तूपा एज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, फॉलोइंग रीजंस मैंने दिए हैं, वो एक बार देखिए. पहला है द कॉन्ट्रास्ट विद द बस्लिंग सिटी. तो शहर में इतनी आवाज़ें, ऊंची आवाज़,
the streets outside the temple are quite noisy and chaotic, filled with crowds, honking vehicles and general hustle and bustle. While stupa के आसपास का एरिया इट ऑफर्स अ क्वाइट पीसफुल एंड सीरीन एनवायरनमेंट. दूसरा है स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर. द एरिया अराउंड द स्तूपा इज काम. जब आप स्तूपा के पास जितनी पास पहुंचेंगे चारों तरफ बहुत ही शांति है, रिफ्लेक्टिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप. और ऐसे शांत वातावरण में आप बहुत जल्दी ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. अनलाइक द लाउड सराउंडिंग्स, जो कि शहर में इतनी ज़्यादा आवाज़ें यहाँ पर बिल्कुल नहीं है. मिनिमल कमर्शियल एक्टिविटी. आसपास दुकानें तो हैं लेकिन बहुत कम है. द नरेटर नोट्स फ्यूअर शॉप्स और डिस्ट्रैक्शंस. और फ्यूअर शॉप्स मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी कम है अराउंड द बौद्धनाथ स्तूपा एज कंपेयर टू द हेविली क्राउडेड स्ट्रीट्स ऑफ नियर द पशुपतिनाथ टेम्पल. Then coming to the last point, that is tranquil surroundings. The stupa's environment fosters a sense of peace. Tranquil मतलब क्या होता है? Peace, शांति, serenity, spirituality. Standing in stark contrast to the hectic streets of the city or hectic streets near the Pashupatinath temple. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4. The writer says all this I washed down with Coca-Cola. What does all this refer to? All this का मतलब क्या था? In the lesson Kathmandu, the author has deliberately used this all this I washed down with Coca-Cola. It refers first है to the variety of food items the writer consumes. बहुत सारी variety उन्होंने खाई थी. The writer indulges in several local snacks available in the busy streets of Kathmandu. फिर अ बार ऑफ मार्जिपन, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, एक स्वीट डिश है. वन ऑफ द आइटम्स द राइटर एंजॉयज इज अ बार ऑफ मार्जिपन. देन अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड विद ओवर चारकोल, जिसे हम भुट्टा कहते हैं. द राइटर सेवर्स द कॉर्न रोस्टेड ऑन ओपन फ्लेम्स. अंगीठी में जलाया जाता है ना, उसको भुना जाता है, तो वो भी उसने खाया था राइटर ने. एडिंग टू द लोकल स्ट्रीट फूड एटमॉस्फेयर. एंड द लास्ट वन, अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स भी उन्होंने वहाँ पर देखी थी. द राइटर ऑल्सो मेंशंस बाइंग एंड रीडिंग कॉमिक्स विच फर्दर एड्स टू हिज एक्सपीरियंसेस. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो करी थी कलेक्टिवली रेफर्स टू द फूड एंड एक्सपीरियंसेस he enjoys during his exploration, and he refreshes himself with a drink later on that was of Coca-Cola. तो इन सब चीज़ों को उन्होंने एक्वायर किया, चाहे वो खाना हो चाहे वो बुक्स हो, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में, और इसके साथ उन्होंने ड्रिंक ली थी कोका कोला. सो दैट इज़ वाई he has written all this I washed down with Coca-Cola. Coming to the fifth question, that is the last question, short type इसमें है. Listening to the music of the flute in the square, the author is reminded of various kinds of flutes. Which kinds does he describe? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑथर ने चैप्टर के एंड तक आते आते फ्लूट के बारे में बताया था, और कौन सी कंट्री में किस टाइप के फ्लूट्स होते हैं, लोग बजाते हैं, वो भी बताया था. सो दैट द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस ऑल्सो. In the lesson Kathmandu, while listening to the music of the flute, the author is reminded various kinds of flutes. He has described it in this way. पहला उन्होंने दिया था the reed ney. आप स्क्रीन पे देखिए ये वर्ड the reed ney. ये क्या है? It's a special type of flute found in the Middle East. The Japanese shakuhachi. ये जापानीज शाकुहाजी की है, या यहाँ पर ये एक तरीके का फ्लूट होता है जो जापान में बजाया जाता है, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स डीप सोलफुल साउंड. नेक्स्ट इज द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ये तो हम सभी जानते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दिस बांसुरी. तो ये हमारी ट्रेडिशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, इंडियन ट्रेडिशन को. नेक्स्ट इज द क्लियर ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में भी एक तरीके का फ्लूट यूज किया जाता है, इंडिजिनस फ्लूट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, नोन फॉर देयर एयरी एंड क्लियर टोन. अनदर वन इज द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स और फ्लूट्स फ्रॉम चाइना, कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ब्राइट एंड हाई पिच्ड साउंड. सो ये मोटा मोटी 5 तरीके के उन्होंने फ्लूट्स के बारे में बताया था इस चैप्टर में. सो द ऑथर मेंशंस दैट ईच फ्लूट produces its unique melody, but all of them share the ability to evoke deep emotions. क्योंकि फ्लूट जब आप सुनते हो, बांसुरी की आवाज़ सुनते हो, you are filled with a lot of emotions.
सो दीज वर ऑल द शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो आप इस चैप्टर से आ सकते हैं। वन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आई हैव ऑल्सो टेकन, और जो क्वाइट ऑब्वियस है इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा, वो है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्राइन विद दैट इन द पशुपतिनाथ टेम्पल। ऑल्दो मैंने इन दोनों वीडियोज़ में आपको इसके बारे में डीपर नॉलेज दी है, बट इसमें पॉइंटर्स में अगर हम डिवाइड करें तो इट विल बी द फर्स्ट पॉइंटर वुड बी एटमॉस्फेयर एट पशुपतिनाथ टेम्पल। वहाँ की सारी डिस्क्रिप्शन आपको देनी है, chaotic and crowded, rituals and strict rules, then noise and commotion, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। इसमें मंकी का फाइटिंग भी आप दे सकते हो, ठीक है। एंड पीपल वर नॉट एबल टू हैव अ प्रॉपर ग्लिम्स ऑफ द डीटी, वो भी आप दे सकते हो। मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से हो रहा था, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे, नॉइज एंड कमोशन, आसपास की सड़कों में से भी बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। देन कमिंग टू द बौद्धनाथ स्तूपा, एटमॉस्फेयर एट बौद्धनाथ स्तूपा, काम एंड सीरीन, स्पिरिचुअल ट्रैंक्विलिटी, जो काम एंड सीरीन की वजह से आप स्पिरिचुअली पीस, ट्रैंक्विलिटी, सीरीन एटमॉस्फेयर फील करते हो। एंड क्वाइट रेवरेंस, तो क्वाइट रेवरेंस क्यों? बिकॉज ऑफ द पीसफुल एटमॉस्फेयर ओवर देयर। इसके लिए आप मिनिमल शॉप्स दे सकते हो जहाँ नॉइज़ का टोटल नो है, कोई नॉइज़ नहीं है आसपास। सो ओवरऑल द बौद्धनाथ स्तूपा प्रोवाइड्स अ ट्रैंक्विल spiritual experience, while the Pashupatinath temple is vibrant, noisy and bustling with a lot of activity. So I hope इन दो वीडियोस से आपको काठमांडू वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के दीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर। टिल आई ब्रिंग more videos, bye bye. Learn English, explore English.